Good morning, friends. Let's begin today's session, the Beyond Classroom, the last day. Uh, Season 9 again has been quite encouraging, quite learning, and I'm sure more than the sessions, the recordings will also be beneficial to a lot of us. And today we have a very, very famous book, Think and Grow Rich. I think not only financial advisors, but most of the people have come across this book because this book is not only used for reading, but also for gifting. I think myself have also gifted this book to so many people, and this big book is like a Bible, or like you can consider this as the first book for many people. And today, our very good friend Nitin Sawant from Pune, who himself is a proponent and also the practitioner of this particular idea, these thoughts, and knowing Nitin for so many years, especially when he is dealing with so many doctors in his personal life. And I can consider himself like a specialist in dealing with doctors as a financial planner. And one guy I have seen, friends, who is only and only uh, doing wealth management only after he has done a financial plan, and everything is only when it is done in a systematic way, he go ahead with that. A very, very disciplined and a very beautiful way he work, his office, his people. And today let's listen to Nitin. And he has also developed a lot of back-end system tools for financial planners also, and associated with various groups all across. And again, he also believes that being in the company of all good like-minded people, you can actually grow exponentially. So thank you very much, Nitin, and look forward to learn from you. Over to you. Yes, thank you, Kanekji, and thank you all volatility coaches and others who joined this session to attend Think and Grow Rich book review. And this is my first book review session that I have done ever. And really, this everyone must have this copy in your bookshelf, like that copy, and you must read this book in a at least once in a year. So you forgot some things or you implement some. So जो कनक जी ने बोला कि उन्होंने बहुत साल पहले बहुत सारी कॉपीज दी है, आई हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग गिफ्टिंग दिस बुक्स टू all those who come at office, and you're all welcome office to get this book from my end. एंड सेकेंड दैट दिस बुक, मतलब कनक जी ने 10 साल पहले कुछ चीजें उस बुक में से बताई थी, दैट ही हिमसेल्फ इम्प्लीमेंटेड एंड आल्सो टेल अस दैट कि यू शुड इम्प्लीमेंट. बट बोलते हैं ना, एक आपको रियलाइज होना चाहिए, तब आपको इम्प्लीमेंटेशन एक्शन होती है. And some days before, due to some reason, I come across this book, and now I'm implementing this book at my daily life, and doing the actions which helps you to grow me and think, grow, and reach. So just I'm sharing my screen. I have made one PPT on this today's our session. Okay, so hello friends. Now this is a okay. So इसमें 13 steps दिए गए हैं by नेपोलियन हिल कि किस तरह से आपको रिच होने के स्टेप्स है. और इफ यू फॉलो दैट ना, डेफिनेटली, मतलब मुझे 1% भी डाउट नहीं कि आप रिच नहीं बन सकते हैं. ऐसे स्टेजेस है उसमें से. और ये थोड़ा हिस्ट्री देना चाहता हूँ हाउ इट स्टार्ट. इट्स जो उस बुक में लिखा गया है कि नेपोलियन हिल एक जर्नलिस्ट है, और वो एंड्रो कार्नेगी का इंटरव्यू लेने जाते हैं. एंड देन बिकॉज एंड्रो कार्नेगी दैट टाइम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन दिस प्लैनेट, तो इंटरव्यू लेते समय उनको रियलाइज हुआ, एंड एंड्रो कार्नेगी को लगता था कि ये जो मेरा सीक्रेट है, जो कि मैं कैसे रिच बना, ये पूरे वर्ल्ड को पता होना चाहिए या समझना चाहिए. उसके उसी पॉइंट ऑफ से दे आर सर्चिंग फॉर द पर्सन हु विल स्प्रेड दिस नॉलेज अक्रॉस द वर्ल्ड. So when they Napoleon Hill जी जो एंड्रो करने का इंटरव्यू लेने गए थे, तब they realized कि this will be the person who will this secret will spread over the all over the world, कि कैसे रिच बना जा सकता है. And they started with that concept.
सो उन्होंने तकरीबन 20 साल रिसर्च किया एंड दे फाउंड दिस आर द सम सीक्रेट्स वेयर यू फॉलो दिस यू डेफिनेटली बिकम द रिच। सो सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट प्रिंसिपल है इस पूरे स्टेज की, बर्निंग डिजायर। सो खुद का डिजायर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या है, आपकी बर्निंग डिजायर क्या है, कि जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते या मुझे चाहिए कुछ भी करके। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप दे हैव मेंशन इन दिस बुक। सो बर्निंग डिजायर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज है जो 100 साल में हुए हैं पूरे हिस्ट्री में, वो सारी चीजें वहां पे दिए हैं। तो बर्निंग डिजायर का एग्जांपल दिया है उसमें कि एक फोर्ट जीतने के लिए एक आर्मी को लेके जाता है, जाना पड़ता है एक राजा को, और एक वहां पे उनको पार करना होता है व्हाट यू कॉल्ड, एक समुद्र, हाँ। तो वो नाव से जाते हैं एंड वहां पे उतरते हैं नाव से, और सब जब नाव से जो सैनिक है उतरते हैं तो वो जो नाव रहती है उनको बर्न किया जाता है। And then they Raja told to their soldiers कि you have to win, either you win or either you die. So in वैसी सिचुएशन करने के बाद वो राजा जीत जाता है। So that's a burning desire, मतलब बर्न करके वो डिजायर इतना बड़ा होना चाहिए कि वो कि आपको जीतना है तो यू हैव टू बी फायर इन योर गट्स। तो वो बर्निंग डिजायर के गोल्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो गोल्स वो कैसे डिसाइड होते हैं वो हमने स्टेप वाइज उसमें दिया गया है कि हाउ यू मेक दिस बर्निंग डिजायर इनटू द गोल्स एंड क्लियर योर। सो जैसे हम जिस प्रोफेशन में है कि पैसा, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सेम वे से उस बुक में दिया है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके माइंड में कि हाउ मच मनी यू वांट टू डिजायर, हाउ एग्जैक्ट मनी दैट यू आर लुकिंग फॉर, देन डिटरमाइन एग्जैक्ट व्हाट इंटेंट टू गिव। वो पैसे कमाने के लिए आप क्या, आप सोसाइटी में क्या देने वाले हैं, सर्विस क्या देने वाले हैं या प्रोडक्ट क्या देने वाले हैं, वो आपको डिटरमाइन करना होगा। क्योंकि आपका सर्विस और आपके काम के बिहाफ ही आपको पैसे मिलते हैं सोसाइटी में, तो उस हिसाब से आपको कितना पैसा कमाना है, उसके हिसाब से आपको कितना सर्विस आप देने वाले हैं, कितने लोगों को सर्व करने वाले, वो आपको क्लियर डिफाइन करना होगा। देन एस्टेब्लिश द डेट व्हेन यू इंटेंड टू पजेस इट, मतलब आपको एक डेट फाइनल करना होगा कि आपको कब तक चाहिए, and create a definite plan and now write it out कि clear and concise एक statement होना चाहिए कि जो आप बोल सकते हैं, या किसी के समय आपको बोलते हैं ना, एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए आपके लाइफ का कि आपको क्या करना है लाइफ में। एंड रीड दिस स्टेटमेंट लाउडली एंड राइट डाउन ट्वाइस इन द डेली। सो मतलब जब वन ऑफ द, मैं कनेक्ट जब करता हूँ इस बुक को, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में जब आया था कि इट्स लाइक अ गोल, हैविंग गोल्स इन योर लाइफ दैट मेक्स यू क्लियर कि आपको क्या चाहिए, एंड एक डेफिनेट डेट होना चाहिए वो अचीव करने के लिए। सो एज अ फाइनेंशियल प्लानर आई एम मेकिंग डूइंग दिस एक्सरसाइज almost 10-15 years for my members on behalf of them, but definitely if you follow that your own life and rigorously, मतलब डेली बेसिस पे आप जब लिखते हैं, so it will help you to कि क्या अचीव करना है, और आप डोंट फॉरगॉट कि हाउ टू अचीव दिस गोल। सो आपको बहुत सारे स्टेप्स है आगे कि उसको कैसे अचीव करना है वगैरह, ये सब चीजें इस बुक में कंसिडर किया गया है। देन सेकंड है स्टेप्स उसमें फेथ। यू हैव टू बी बिलीव कि दिस इज अ मतलब दिस आई कैन अचीव। सो आज हम गोल्स डिसाइड करते हैं बट नॉर्मली क्या होता है कि फेथ नहीं रहता है, तो ऐसे नहीं करना है। इन्होंने जो बोला है कि आपने जो भी गोल है उसमें फेथ रखिए, डोंट थिंक कि होगा या नहीं होगा। जो निगेटिव थॉट्स रहते हैं या इमोशंस रहते हैं वो यहाँ पे आपको नहीं लाने हैं। तो योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल, गिव्स यू हमेशा बोलते हैं ना, कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड रहता है। सो कॉन्शियस माइंड में आप जो चीजें कॉन्शियसली करती है, जैसे कि आपको नया एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप कार चलाते हैं, तो इनिशियली आप कार चलाते हैं तो कॉन्शियसली आप कार चलाते हैं एट अ अर्ली स्टेज व्हेन यू लर्निंग फेज, बट एक बार सीख जाते हैं तो आपको अनकॉन्शियसली आप सबकॉन्शियसली आपको कार चलाते हैं, मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि ऑफिस से घर आप कैसे चले गए। बट जब एट फर्स्ट मंथ और फर्स्ट फ्यू वीक्स यू कॉन्स्टेंटली फर्स्ट गियर सेकंड गियर, वैसे ही आपके माइंड को आपको ट्यूनिंग करना है कि आपके जो गोल्स आपने प्लान किए हैं वो सबकॉन्शियसली आपको उसकी आदत होनी चाहिए
this will be happen, this will be achieved, and this will be faith that I have in this, belief that I have, or a desire that I have, that I can achieve. So how to develop this faith? तो माइंड क्या होता है, कुछ जो हमारे बियॉन्ड लिमिट्स हम जो प्लान करते हैं या सोचते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता है सम ऑफ द टाइम, एंड I have seen this in my life when I implementing this book in my daily life. So how you develop this faith? By doing a repetition of affirmations. So कनक जी ने बहुत बार बोला है या हमने सुना है, affirmation is very important. So you should have a repetition of affirmation on a daily basis. सूरज एक हम एक ग्रुप से है, वहां पे भी हमको एक कुछ अफर्मेशन कार्ड्स है जो कि आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. दैट आल्सो वी यूज ऑटो सजेशन फॉर सबकॉन्शियस माइंड. तो देयर आर सम वेज हाउ यू ऑटोमेटिकली सजेशन देते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे दे सकते हैं. जैसे कि जब हम मतलब जो एक आदत हमने लगाई है या मैंने लगाई है, तो दैट इज वन ऑफ द कि लुक फॉर द 5 गुड थिंग्स इन द डेली बेसिस. आपके लाइफ में 5 अच्छी चीजें क्या हो रही है, राइट डाउन दैट 5 थिंग्स. सो दैट इज अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड यू डेवलप इन योर लाइफ. सो देयर आर सम मेनी फॉर्मूला दैट गिवन इन दिस बुक. सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला भी है. देयर आर कुछ सेंटेंस है कि इफ यू रीड दैट सेंटेंस रेगुलर बेसिस, इट हेल्प यू टू गेट अ सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला. एंड जो आज आप बिलीव करते कि ये चीजें नहीं हो सकती थी, तो आज वो हुई है. वैसे बहुत सारी चीजें आपने समझो कुछ गोल रखा होगा लाइफ में या रखना चाहते हो, तो डोंट थिंक कि ये नहीं होगा वगैरह, बिकॉज आपके जब पहले है सम ऑफ द बिलीव, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने बिलीव रखा था कि मैं अहिंसा के बेसिस पे मैं पूरे कंट्री को अंग्रेजों से इंडिपेंडेंस दिलाऊंगा. ये इम्पॉसिबल था जब थॉट प्रोसेस, बट उन्होंने कर दिखाया. जैसे फोन का इन्वेंशन है, ट्यूबलाइट है, एयरप्लेन है, कभी लोगों ने कभी ये थॉट नहीं किया था कि ये ऐसे हो सकता है, बट दैट चेंज हैपेंस बिकॉज ऑफ दे बिलीव इन दैट. सो आपका कॉन्शियस माइंड हमेशा आपको ऐसी कुछ चीजें जो कि हम मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल नाउअडेज कि आपका जो आइडिया रहता है वो किसी लोगों को पूछ के एक कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि मेरा आइडिया बराबर है कि नहीं है. बिकॉज हाईली 5% लोग हैं जो कि ये इन्वेंशन ये कुछ ये रिच होते हैं. 95% पीपल आर नॉट बिकमिंग द रिच. सो ये वो हम 95% लोगों के पीछे नहीं थॉट प्रोसेस नहीं यूज करना है. सो ये इस बुक में लिखा गया है. सो फेथ इन दैट. Then there is a faith poet which is mentioned in this book, which is I like, and I have read few years back, but we can just say, if you think you are beaten, you are. If you think you are dare not, you don't. If you like to win, but you think you can't, it is always certain you won't. If you think you will lose, you are lost. For out of the world we find. Success begins with a fellow will. It's all in the state of mind. If you think you are outclassed, you are. You are got to think high to rise. You have got to sure of yourself before you can ever win a prize. Let's life battles don't always go to the stronger or the faster man, but soon or later, the man who wins is the man who thinks he can. So this is one of the best poet that I heard कि आप सोचते हैं वही मतलब जीत सकता है. That is that poet is giving this information. Then there is a message. Yes. It should be professional notice board. So third steps to become a rich is a auto suggestion. Talk to true feelings because of your subconscious mind understand, and this is a true feelings. So auto suggestion आपके mind को देना आना चाहिए. जैसे कि see and feel your achievement of goals. Creative visualizations आपको daily कर सकते हैं, करना चाहिए. And जैसे मैंने बोला 1.5 साल से मैं ये बुक मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. 60 to 70% चीजें मैंने इम्प्लीमेंट की है, not all, but some of the creative visualization recently मैंने चालू किया है. तो stimulate subconscious mind daily. There are some actions really मतलब
आप मतलब ऐसे ऐसे बताया गया नहीं है उस बुक में, स्टेप्स भी बताए हैं आप कैसे फॉलो कर सकते हैं कि आपको स्टिमुलेट करना है आपको सबकॉन्शियस माइंड को डेली बेसिस पे। देन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, आपके स्टेटमेंट कैसे राइट कर सकते हैं, उस हिसाब से वो दिया है। देन हमने एग्जांपल्स देखे होंगे कि ओलंपिक के जो एथलेटिक्स रहते हैं उनको एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन दिया जाता है उनके कोचेस के तरफ से। देन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम जो रहती है उनको भी कोच किया जाता है इन टर्म्स ऑफ माइंड को सब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करने के लिए। इवन नासा में जो ट्रेनिंग दिया जाता है एस्ट्रोनॉट्स को, उनको भी एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन दिया गया है फॉर द अचीविंग देयर अचीवमेंट्स। So you have to believe in that and feel that your goals are in progress of achieving. So this is the third, and the fourth statement is to become a specialized knowledge. Okay, because एक belief यहाँ पे बना गया है कि knowledge is not only a power, but specialized knowledge is the only power. You, for getting successful, you should have a specialized knowledge, not a general knowledge. And मतलब और सक्सेसफुल लोग आपने जितने भी देखे होंगे कि वो ड्रॉप आउट है स्कूल से, जैसे कि थॉमस एडिसन है, हेनरी फोर्ड है, शिक्षक सीखे थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन है या स्टीव जॉब है, ये सब चीजें दे हैव अ स्पेशलाइज्ड स्किल इन देयर पर्टिकुलर सेगमेंट, नॉट अ जनरल सेगमेंट। तो दैट बुक शोज दैट यू शुड हैव अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देन यू शुड हैव अ फोकस लर्निंग, जो आपको करना है उसमें आप फोकस या लर्निंग करना चाहिए, एंड देन यू डेफिनेटली बिकम अ सक्सेसफुल। And you should have a mastermind group which helps you to challenge your actions that you do, discuss your actions that you do. So that's a specialized group you should have when you in the journey of this becoming a rich. Then fifth stage उन्होंने दिया है कि imagination. ओके, सो आपको इमेजिन करना है जो भी आपका आइडिया है वो कैसे अचीव होगा, वो अचीव हो रहा है, उसके एक्शंस क्या रहेंगे, डेली बेसिस पे आप थॉट कैसे करना है। एक कोको कोला का एक फॉर्मूला आज 50 साल से दुनिया में राज कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट समवन थॉट कि इट विल वर्क। ओके, सो दैट्स अ इमेजिनेशन दैट द ओनर हैज डन, वो एग्जांपल वहां पे दिया है। सो वो इमेजिनेशन करते समय दो चीजें रहती है, एक है सिंथेसाइज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो जो सेकंड वन इमेजिनेशन है सिंथेसाइज इमेजिनेशन, इट्स ओल्ड बिलीव दैट वी हैव, एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन यू हैव टू थिंक ऑन दैट लाइन कि हाउ आई एम अचीविंग दिस, यू हैव टू इमेजिन कि हाउ इट इज पॉसिबल। मतलब आज मैं एक एग्जांपल इसका देना चाहता हूँ, मैंने फाइनेंशियल प्लान में करता हूँ। So I was taking 2 days to achieve make a financial plan 10 years back. So now we have make a financial plan within a 10 minutes. You make a financial plan by putting the data into the mobile app. We are making 10 minutes in financial plan. So that imagination I never thought about it. Means कि ऐसा हो सकता है, but because of technology, because of कि मेरा एक गोल है कि बहुत लोगों को मुझे financial planning करना है, that comes true. एंड यू मतलब आपको दुनिया ओपन हो जाती है इफ यू बिलीव दैट, एंड दैट वी आर मेकिंग नाउ बाय ऑन द फाइनेंशियल प्लानिंग ऐप दैट वी हैव क्रिएटेड। सो क्रिएटिव इमेजिनेशन इज माइंड ब्लोइंग। देन यू शुड हैव ऑर्गेनाइज प्लानिंग, कि आपको जो गोल अचीव करना है उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्लान होना चाहिए, कैसे आप एक्शन लेने वाले हैं। और ये करते समय बहुत चैलेंजेस आएंगे, यू मे बी fall down in terms of taking action. You have to again organize and plan to how you can achieve that goal. So your goal should be clear कि मुझे कहाँ पे पहुंचना है, और आपके yearly plan, monthly plan होने चाहिए, and you should track these goals on the monthly basis, the targets that you have decided in terms of money. So वहाँ पे mention किया कि not just in numbers, तो money भी आपको उसको attach करना है for doing this activity. Then seven step दिया है कि the ability of decision making, always make a right determined decision, never confused by others opinion. So ये भी चीज है कि most of the time जब हम decision लेते हैं तो किसी ने कुछ बताया, वो मेरे इसमें हुआ था, किसी ने कुछ बताया तो I make a confusion. So I realize this कि confirm decision होने चाहिए। ये हेनरी फोर्ड ने एग्जाम्पल वहां पे दिया है बुक में कि किस तरह से वो उन्होंने जो पहले घोड़ा गाड़ी थी, and then they took the decision to become having a car in the world. So they are come up with the first car, and then the idea changed.
तो बहुत सारे सजेशन दिए थे, बट बिकॉज ऑफ देयर फर्म डिसीजन they have make it that and make a successful and become a rich in his life. So you should have whatever decision you took, you should have make a right decision in terms of you firm whatever you do, क्यों करना है, कैसे करना है, what is the purpose behind it, that. So then 8th step है becoming a rich. So the power of devotion, मतलब आपको पैशनेट होना पड़ेगा इस गोल को अचीव करने के लिए, जो अपने डिसाइड बर्निंग डिजायर है. उसके एग्जांपल्स है, जैसे एलन मस्क है, टेस्ला के ओनर है, अलीबाबा के फाउंडर है. तो दे आर पैशनेट व्हाट दे वांट टू डू. मतलब टेस्ला जैसे थॉट प्रोसेस मुझे नहीं लगता किसी रखा था, मतलब कमिंग इसमें कि मुझे मून पे लेके जाना है. सो दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस only happen by devotion and give your 100% and things will follow. So for that purpose you should have fixed goal, a goal, good planning होना चाहिए, positive mindset होना चाहिए, and every a very determined group भी होना चाहिए आपको help कर सके इस point of view से. Then ninth step become the rich is a power. So एक आप जब thought process करते हैं, it's a your goal, but उसके लिए आपको सिर्फ एक नहीं लगेगा, you need a people, team of people and team of power which think on that line to how you become a successful. So that's not a one person's job, it's a team of work that you have to do. So for that purpose you need a team which is specialized in that particular sector, and definitely for that purpose you need a powerful team which will help you to achieve this. Then you should have there is a 10th step उन्होंने जहाँ पे मेंशन किया है कि सेक्स टर्मिनेशन मीन्स, इसका मतलब कि आपका लाइफ में जो भी वाइफ है, फैमिली मेंबर्स है, उनका भी आपको कंसिडरेशन करना है व्हेन यू बिकमिंग रिच, बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ लव. मतलब आपके लाइफ में यू शुड बी बिलीव इन द करिश्मा एंड द क्रिएटिविटी. It happens in the when you with the family, you have a love with your family, that अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं वहां पे. देन 11 स्टेप्स यहाँ पे उस बुक में दिया है कि कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. ये आपको आपका हैबिट से होगा. तो देयर आर पॉजिटिव इमोशंस एंड देयर आर नेगेटिव इमोशंस. सो व्हेन यू डेली डील विद एक्टिविटीज ऑफ डूइंग गोल्स, तो यू मे फील दैट कि आप जो कर रहे हैं वो अचीव नहीं होने वाला है, या it's a not good idea. So you have to think on the positive side, what are the things that you can do. You might be feel that कि there's a fear or anger कि क्या होगा नहीं होगा. You may be find in trap कि लोग नहीं follow कर रहे हैं या कोई नहीं कर रहा है. So that you have to keep believing your subconscious mind कि ये होगा and how things will be achieved. You have to face that with a positive and negative emotion. And for understanding this, you need to read this book very regular basis. What are the negative and positive emotions that you have? Then 12th step होना चाहिए आपको कि एक फ्रेश ब्रेन होना चाहिए हमेशा आपको, टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग. सो जो भी आइडियाज आपको आते हैं आपके गोल्स अचीव करने के लिए, तो आपको हमेशा ओपन रहना चाहिए कि जो आइडियाज आपको आ रहे हैं कैसे उसके लिए आपका भी थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहिए, आप जो करना चाहते हैं. सो डेफिनेटली यू राइट काइंड ऑफ पीपल विल कनेक्ट. यूनिवर्स हैव दैट पावर कि आपके साथ लोग एसोसिएट हो गए इफ योर थॉट्स आर दैट मच. एंड वन ऑफ द एग्जांपल दे हैव मेंशन कि यू ऑलवेज सर्च फॉर द एक्सेलेंस, कि हमेशा आपको सर्च ऑफ एक्सेलेंस में रहेंगे. तो डेफिनेटली जी के फाउंडर है जैक वेल्च, उनका वहां पे एक एग्जांपल दिया है कि हाउ यू सर्च फॉर द एक्सेलेंस एंड बिकम द नंबर वन कंपनी इन द प्लैनेट जी. सो दैट इज 12th कि आपको हमेशा सर्च एंड एक्सेलेंस या इसमें रहना चाहिए कि आपके जो भी थॉट्स आते हैं उसको यू शुड बी ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली कि हाउ कैन आई दिस थॉट्स आई विल कन्वर्ट इनटू माय goals that I have planned. And the 13th step is that the use of becoming to use of sixth sense. So again, this is after 12th steps you follow, this is the last step is there. Beyond after this implementing this, you definitely get a sixth sense how you becoming a rich over the period of time. That is a sixth sense.
it's a door to wisdom. डोर टू विजडम आपको ओपन हो जाता है कि किस तरह से हर एक चीज आपको यूनिवर्स हेल्प करती है, ये आपको एक्शंस दिखने जाएंगे, इस तरह से इस लास्ट इसमें लिखा है. सो दैट्स इट कनेक्शन फॉर माय एंड, एंड दिस इज अ बुक, this is a new edition, 21st century. I have, so you can मतलब get this book Amazon वगैरह में आप देख सकते हैं. That was nice sharing, Nitin. Any questions on this? We can just, yes, boom, boom, boom. Excellent. Again, a good review. Sometimes no, repetition is the mother of success, and that's what this book is about. And it was really made fresh. A lot of points we keep forgetting, but again, once we remember, it's really nice. So thank you very much, Nitin. I think that's really required at this point of time. Yes.